Morning students, this is the second video of the conclusion to the poem Christabel part first, and overall देखें तो this is the last video of the poem Christabel. So in the conclusion portion of the poem Christabel, the poet is saying something or rather describing about the maiden Christabel. Here the speech is given by a first person who is unnamed. We do not know who is the speaker, but it is given by a first person who is describing the overall scenario, what happened to Christabel and what her present state is now. ठीक है, तो in the conclusion to part first, in the first video which we made, that is the lecture 13th, in that we saw that the person referred to Christabel as how beautiful she was when she went to the forest in the grim midnight to pray for her fiance. But now she is lying in such a bad condition with a evil spirited woman upon whom she trusted. Now, in continuation to this, the poet says, "A star hath set, a star hath risen, O Geraldine, since arms of thine have been the lovely lady's prison. O Geraldine, 1 hour was thine." Now here the poet refers to Christabel when he says that a star hath set, a star hath risen. Means a star here is a metaphor used for Christabel. The poet calls Christabel a star and says that a star had set. Now, as her condition has deteriorated, as her condition has been doomed down, so she was a star, and now she is in such a mischievous condition, bad condition now. A star has risen. Earlier she was in a very good condition that she went to the forest, she was praying to the gods. Here poet wants to, here the poet focuses upon the condition of Isabel, that when she was with the god, in connection to god, she went to the forest, and because she saw dreams about her fiance, very bad dreams she had, and to pray for his well-being, she went to the forest. दैट टाइम शी वॉज इन कनेक्शन विद द गॉड, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी. तो जब वो भगवान के सानिध्य में थी, ठीक है, भगवान पर उसका विश्वास था, तब तो क्या थी, वो बहुत, उसकी कंडीशन अच्छी थी. शी वॉज अ स्टार, और तब वो उभर रही थी, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी. बट नाउ वहाँ क्या हुआ, वो एक ईविल स्पिरिटेड लेडी से मिली, जिसके कि ऊपर उसने विश्वास कर लिया, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था. बीच में उसको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स भी मिले दैट शी इज़ नॉट अ गुड वुमन, बट इवन देन शी ट्रस्टेड. क्रिस्टाबेल ने उस पर विश्वास किया, और अब उसकी हालत क्या है, दैट लेडी, वो अब उसके चैम्बर में है, बेडरूम में है, और उसने उसको अपने क्रिस्टाबेल को अपने वश में कर लिया है. तो अब क्रिस्टाबेल की कंडीशन क्या है, दैट इज़ शी इज़ नाउ इन अ वेरी बैड कंडीशन. जब वो बुरी जो आत्माएं होती हैं उनके सानिध्य में आ गई है, तब उसकी कंडीशन बहुत बैड होगी. दिस थिंग, O Geraldine, since arms of thine have been the lovely lady's prison. Now the poet refers to Geraldine and tells that as Geraldine has taken Christabel into her arms. They both are lying together in the bed, and Geraldine has taken Christabel in her arms. तो वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या है, तुम्हारे जो आर्म्स, योर आर्म्स सर्व एज दिस लेडीज प्रिजन, कि वो एक कैद की तरह से है, कि तुमने इसको बाहों में भरा हुआ है, तो ये तुम्हारी जो बाहें हैं वो क्रिस्टाबेल की तरह की कैद, क्रिस्टाबेल जो है वो तुम्हारी कैद में है एक तरह से. तो बिकॉज जेरेल्डाइन ने उसके ऊपर जादू कर दिया है, जेरेल्डाइन हैज़ कास्टेड हर स्पेल अपॉन क्रिस्टाबेल एंड टेकन कंट्रोल ओवर हर स्पीच. ठीक है, तो ये प्रिजन में है. हियर द पॉइंट इज रेफरिंग टू सिमिली यूज़ करते हुए क्रिस्टाबेल की जो अभी की पोजीशन है, दैट शी इज़ इन हर आर्म्स, उसको प्रिजन से कंपेयर कर रहे हैं. ओ जेरेल्डाइन, 1 hour was thine, thou hast thy will,
एक जेरेल्डाइन को अगेन द पोएट इज रेफरिंग एंड सेज दैट 1 hour वॉज दाइन, एक समय तुम्हारा था, दैट व्हेन शी जेरेल्डाइन जो है वो क्रिस्टबेल के रूम में एंटर कर जाती है ना, और उसके बेडरूम में एंटर कर जाती है, तो वो जो वक्त था वो क्या था, तुम्हारा था, तुम उस वक्त जीती, ठीक है, यू वन दैट टाइम, दाउ हैज़ दाई विल मीन्स वट एवर यू वॉन्टेड टू डू यू गॉट दैट, तुम उसके ऊपर कब्जा करना चाहती थी, क्रिस्टबेल को अपने वश में करना चाहती थी, यू वॉन्टेड टू विन ओवर द सोल ऑफ क्रिस्टबेल एंड यू वन दैट, यू डिड दैट, यू सक्सीडेड इन दैट बाई टीन एंड रिल द नाइट बर्ड्स ऑल दैट आर वर स्टिल, बाय हुक और बाय क्रूक जो भी तुमने तरीके अपना सकती थी तुमने वो तरीके अपना करके एंड क्रिस्टबेल को तुमने अपने वश में कर लिया, द नाइट बर्ड्स ऑल दैट आर वर स्टिल, और उस वक्त क्या है, जो रात के पक्षी होते हैं वो उस वक्त पूरी तरह से दे वर स्टिल मीन्स दे वर साइलेंट व्हेन यू वर getting hold on Christabel, when you were overpowering Christabel, and whatever you wanted to do, you succeeded in doing that. That time was yours, वो समय तुम्हारा था, और तब बिना किसी कोई शोर शराबा नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, इवन जो नाइट बर्ड्स हैं, अब नाइट बर्ड्स हियर ही इज रेफरिंग टू जैसे कि आउल्स एंड ऑल दोज बर्ड्स हु मेक नॉइज इन द डार्क, कि वो लोग भी चुप थे, एकदम सन्नाटा था, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बट नाउ दे आर जुबिलेंट अन्यू फ्रॉम क्लिफलैंड टावर टू वू फ्रॉम वुड एंड फेल. Now he is referring to the night birds, particularly owls, that you know that in the night they make sounds. रात में क्या है, उल्लू जो होते हैं वो शोर मचाते, वो अपनी आवाज़ें निकालते, बट जब जेरेल्डाइन तुम क्रिस्टाबेल को अपने वश में कर रही थी तब वो लोग भी शांत थे, किसी ने भी कुछ आवाज़ नहीं की, बट नाउ दे आर जुबिलेंट अन्यू, जुबिलेंट मीन्स हैप्पी, अन्यू अगेन, है ना, वंस मोर, अन्यू मीन्स है वंस मोर, लेकिन अब क्या है, दोबारा ये हैप्पी है. नाउ द पॉइंट इज रेफरिंग टू आउल्स बेसिकली, कि दोबारा से क्या है, हैप्पी हो गए हैं, दे आर अगेन बिकमिंग वेरी हैप्पी फ्रॉम क्लिफलैंड टावर. क्लिफलैंड टावर मीन्स जो पहाड़, क्लिफ मीन्स माउंटेन, है ना, तो माउंटेन के ऊपर जो टावर है वहाँ बैठ करके वो आवाज़ें निकाल रहे हैं. टू, this is the sound of owls, which the poet is using to refer to the presence of owls. तो here the figure of speech is onomatopoeia, जब साउंड का यूज़ करके और ऑब्जेक्ट को बताया जाए, with the help of the sound, when the poet uses the sound of a particular thing, and with that sound we get to know about what object or about what bird or animal or particular thing the poet is referring to. That figure of speech is known as onomatopoeia. तो यहाँ पोइट क्या कर रहा है, यहाँ वो आउल के साउंड का यूज़ करके और ये बता रहे हैं कि कैसे आउल्स जो हैं, जब रात में तुम उस पर कैप्चर कर रही थी तब तो वो शांत थे, लेकिन अब वो क्या है, दोबारा से दे आर हैप्पी, वंस मोर दे हैव बिकम सो हैप्पी एंड सो एक्टिव, और क्लिफलैंड के टावर से वहाँ ऊपर मतलब बैठ करके भी वो शोर मचाते हैं, और वहाँ से वो बिल्कुल शोर मचाते हुए और नीचे आ रहे हैं, फ्रॉम वुड एंड फेल, ठीक है, वो वहाँ से नीचे आ रहे. एंड सी द लेडी क्रिस्टबेल गैदर्स हरसेल्फ फ्रॉम आउट हर ट्रांस, हर लिम्स रिलैक्स, हर काउंटेनेंस. Now the poet refers again to Christabel and says that कि देखो Christabel again she is gathering herself, or she is rather getting awakened from her trance. Trance means half conscious state, है ना, वो पूरी तरह से होशोहवास में नहीं थी, आधी कॉन्शियस स्टेट में है. ट्रांस मीन्स हाफ कॉन्शियस स्टेट. एंड वाई शी वेंट इनटू हाफ कॉन्शियस स्टेट, बिकॉज जेरेल्डाइन casted a spell upon Christabel, ठीक है.
तो रात में जेरल्डाइन ने उस पर जादू कर दिया और जिससे कि वो हाफ कॉन्शियस स्टेट में थी. शी वॉज स्लीपिंग, लेकिन ओपनिंग हर आईज एंड शी वॉज ड्रीमिंग एंड इट वॉज अपियरिंग एज इफ शी वॉज हैविंग अ वेरी फ्राइटफुल ड्रीम. बहुत ही डरावने उसको सपने आ रहे थे. लेकिन अब क्या है, वो दोबारा से अपने हाफ कॉन्शियस स्टेट से उभर रही है. शी इज़ ट्राइंग टू गेट अवेकन, वो धीरे धीरे उठ रही है. हर लिम्स रिलैक्स, लिम्स मीन्स हैंड्स एंड लेग्स. शी इज़ रिलैक्सिंग हर बॉडी. हर काउंटेनेंस ग्रोज सैड एंड सॉफ्ट. काउंटेनेंस मीन्स फेस, द अपीयरेंस ऑफ अ फेस, कि उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल ही सैड हो गया है. द स्मूथ थिन लिड्स क्लोज ओवर हर आईज एंड टीयर्स she sheds, large tears that leave the lashes bright, and she is crying. ठीक है. जैसे जैसे वो उठ रही है अपने हाफ कॉन्शियस स्टेट से दोबारा कॉन्शियसनेस में आ रही है. हर लिम्स आर रिलैक्सिंग, हैंड्स एंड लेग शी इज़ मूविंग अ बिट, और वो रिलैक्स कर रही है. हर फेस, जो उसका बिल्कुल चमकता हुआ चेहरा था, वो क्या है, वो बिल्कुल सैड हो गया है. इट इज़ अपियरिंग वेरी सैड एंड शी इज़ क्राइंग. और उस आंसू जो है वो उसके पलकों पर आ करके और उसको और क्या कर रहे हैं, ब्राइट कर रहे हैं. उसके जो आई लैशेज़ हैं वो और बहुत ही मोटे मोटे आंसू के बूंदों के कारण वो और चमकते हुए नज़र आ रहे हैं. हेयर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टबेल आफ्टर Geraldine casted her spell upon her, and often the while she seems to smile as infants at a sudden light. She is crying, वो अपने आप को वापस होश में ला रही है और वो रो रही है. और रो रही है तो आंसू की बूंद, मोटे मोटे आंसू के बूंदों के कारण उसकी जो आई लैशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमक रही है. लेकिन बीच बीच में क्या है, शी इज़ laughing, as it is appearing that she is smiling, and often the while she seems to smile as infants at a sudden light. और कैसे स्माइल कर रही है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है. इन्फेंट बिल्कुल ही छोटा बच्चा, वो जैसे ही एक रोशनी को देखता है वो किस तरह से स्माइल करता है, वैसे ही क्या है क्रिस्टबेल जो है वो स्माइल कर रही है. Here the poet is pointing towards the state, the mental state of the Christabel, कि what has happened to her after Geraldine casted spell upon her, कि वो उसके वश में है तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब she is now also in half कॉन्शियस स्टेज, और कभी वो रो रही है, कभी हंस रही है. तो इस तरह से उसकी बहुत ही कन्फ्यूजन वाली स्थिति है क्रिस्टबेल की. उसका जो मेंटल स्टेट है वो एक तरह से, इमोशनल स्टेट है वो एक तरह से क्या है, डिस्टर्ब हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट स्पेल. या she doth smile and she doth weep like a youthful hermitess, beauteous in a wilderness, who praying always prays in sleep. Now the poet is again referring to Christabel and he's saying that yeah, she did smile, that yes, she is smiling and she is weeping, कि वो smile भी कर रही है और वो रो भी रही है. weeping means crying, she is weeping also, like a youthful hermitess. hermit means sage, साधु. तो साध्वी की तरह से, लाइक जैसे कि कोई यंग साध्वी हो, उस तरह से क्या है, वो कभी तो हंसती है और कभी वो रोती है. ब्यूटियस इन अ वाइल्डरनेस, बट इवन देन शी इज़ अपियरिंग वेरी beautiful in this wilderness also. It is the poet this stage of Christabel, that when she is smiling as well as she is weeping side by side, so this is a wild stage, because she is not in a proper position that या तो आप हंसते हो, खुश होते हो तो हंसते हो, दुखी होते हो तो आप रोते हो. लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन क्रिस्टबेल के साथ में, वो एक तरफ स्माइल भी कर रही है और एक तरफ क्राई भी कर रही है, रो भी रही है. तो दिस इज़ अ बिट ऑफ वाइल्डरनेस की स्टेज है, उसकी वाइल्ड स्टेज है. बट इवन इन दिस स्टेज ऑल्सो शी इज़ अपियरिंग वेरी ब्यूटिफुल. हु प्रेइंग ऑलवेज प्रेज इन स्लीप. अगेन क्रिस्टबेल को रेफर करते हुए क्या कह रहे हैं, दिस इज़ यूजफुल क्रिस्टबेल, कि जो हमेशा क्या है प्रार्थना करती रहती थी, वो अभी नींद में भी क्या है, वो प्रार्थना कर रही है. एंड इफ़ शी मूव अनक्वाइटली परचांस, इट्स बट द ब्लड सो फ्री कम्स बैक एंड टिंगल्स हर फीट. कि और हल्का सा भी अगर वो बिना शोर किए हुए, अनक्वाइटली मीन्स
क्वाइटली मीन्स विदाउट एनी नॉइज, अनक्वाइटली विथ अ बिट ऑफ नॉइज, हल्का सा आवाज़। कि अगर पर चांस मीन्स बाई चांस, कि अगर बाई चांस मतलब बिना उसकी प्रॉपर इच्छा के, बाई चांस ऐसे ही अगर हल्का सा भी क्या है मूव कर दो, कि इवन व्हेन यू आर ऑन बेड एंड इफ़ यू विल मूव अ बिट योर लिम्स, सो अ नॉइज विल कम, अ स्लाइट बिट ऑफ नॉइज विल कम, कि हल्का सा भी अगर वो आवाज़ करते हुए शी ट्राइज टू मूव, इट्स बट द blood so free comes back and tingles in her feet that she can even feel that the blood in her body has become so stagnant, कि ब्लड भी जो है उसकी बॉडी के अंदर वो भी क्या है बिल्कुल स्थिर हो गया है, कि अगर वो ज़रा सा भी मूव करती है तो वो ब्लड जो है वो उसके फीट में जा कर के और वो टिंगल करता है। टिंगल मीन्स अ स्लाइट थ्रिलिंग सेंसेशन, हल्का सा जैसे पिंच करते हैं हम, सुई चुभती है तो कैसे टिंगलिंग सेंसेशन होती है, द पोइट इज़ रेफरिंग टू दैट, कि अगर वो हल्का सा भी हिलती है तो ब्लड जो है वो उसके फीट में जाता है और उसको फील होता है दैट द ब्लड इज़ मूविंग टूवर्ड्स द फीट एंड इट इज़ giving a tingling sensation. No doubt she hath a vision sweet. What if her guardian spirit were there? What if she knew her mother near? Here the poet says that कि no doubt she hath a vision sweet, कि बिल्कुल उसको vision means dreams, कि उसको sweet visions आ रहे हैं, no doubt that she is getting a sweet visions, sweet dreams. What if her guardian spirit were there? What if she knew her mother near? कि क्या होता अगर क्रिस्टाबेल को पता होता कि जो उसके गार्डियन स्पिरिट है वो आस पास ही है, जो उसकी मदर है वो पास में ही है। क्रिस्टाबेल की गार्डियन स्पिरिट कौन है? उसकी मदर ही है, ठीक है। तो क्या होता अगर क्रिस्टाबेल को ये चीज़ पता होती, शी हैड 100% बीन श्योर ऑफ दिस दैट येस माई गार्डियन स्पिरिट इज़ प्रेजेंट हेयर, एंड ये उस क्रिस्टाबेल को गार्डियन स्पिरिट का कब पता होता? जब उसको पहले फर्स्ट हैंडली तो ये पता चलता ना, ये सोच पाती दैट येस जेरेल्डाइन इज़ अ इविल स्पिरिटेड वुमेन, कि वो एक बुरी आत्मा है, तो अब अगर वो मेरे कमरे तक आ रही है, मेरे कैसल तक आ गई है, तो उससे बचने के लिए कोई बात नहीं, माई गार्डियन स्पिरिट इज़ हेयर, माई मदर इज़ हेयर, है ना। लेकिन क्रिस्टाबेल को इस पे बिलीव नहीं था, शी हैड जस्ट अ वेग आइडिया दैट येस शायद मेरी मदर जो है उन्होंने ये चीज़ फ्रायर को कही थी, फ्रायर अ रिलीजियस पर्सन, कि एट द टाइम ऑफ हर डेथ उन्होंने फ्रायर को कहा था दैट आई विल बी सर्विंग एज अ गार्डियन एंजल टू माई डॉटर। लेकिन क्रिस्टाबेल को इस पर प्रॉपर यकीन नहीं था। लेकिन पॉइंट हियर इज सेइंग दैट व्हाट इफ, क्या होता अगर क्रिस्टाबेल को ये बिल्कुल यकीन होता दैट कि गार्डियन स्पिरिट जो है वो उसके साथ है, उसकी मदर जो है वो बिल्कुल पास में है। बट दिस शी नोज इन जॉयज एंड वोज, बट ठीक है क्रिस्टाबेल को ये 100% नहीं पता था, लेकिन इसको इतना ज़रूर पता था, इन जॉयज एंड वोज मीन्स इन हैप्पी टाइम्स एंड इन the times of sadness, woes means in the time of sadness, in the time of despair, that क्या चीज़ पता है उसको क्रिस्टाबेल को? that saints will aid if men will call, for the blue sky bends over all. It means what? Here the poet says कि क्रिस्टाबेल को इतना ज़रूर पता है that saints will aid if men will call. Saints means the guardian spirits, the angels, जो भी आपका प्रोटेक्टर कह लीजिए, कि वो तब हेल्प करते हैं, विल एड मीन्स हेल्प, दे विल हेल्प व्हेन मेन विल कॉल, इफ मीन्स व्हेन, कि वो कब वो भी हमारी हेल्प के लिए कब आते हैं? जब हम उनको बुलाते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टाबेल ने नहीं याद किया, न यकीन किया अपनी मदर के ऊपर, अपनी गार्डियन स्पिरिट के ऊपर कि हाँ वो आसपास है तो वो मेरी हेल्प करेंगे। अगर वो ऐसा विश्वास रखती, उनको बुलाती, तब वो जेरेल्डाइन से बच सकती थी, ठीक है। बट उसने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसको ये चीज़ पहली बात तो उसको जेरेल्डाइन की ही इविल स्पिरिटेडनेस का अब तक पता नहीं चला। शी इज़ सच अ नेव पर्सन, इतनी वो इनोसेंट है कि उसको अब तक जेरेल्डाइन की ही इविल स्पिरिटेड का आभास नहीं हुआ। तो हाउ कैन शील कम एंड अंडरस्टैंड एंड कॉल फॉर द प्रोटेक्टर ऑफ हरसेल्फ, कि वो अपने गार्डियन स्पिरिट्स को कैसे बुलाती फिर?
ठीक है। लेकिन उसको इतना ज़रूर पता है दैट सेंट्स विल एड इफ़ मेन विल कॉल, कि वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए सेंट्स और एंजल्स तभी आते हैं जब हम उनको पुकारते हैं। फॉर द ब्लू स्काई बेंड्स ओवर ऑल, बिकॉज जो ये ब्लू स्काई है, जो पूरा नीला आसमान है, जो यूनिवर्स है, दिस इज़ इक्वल फॉर ऑल, दिस बेंड्स ओवर ऑल। बेंड्स ओवर ऑल मीन्स ऑल द ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑल द सिविलाइजेशन, जितने जो लोग इस आकाश के नीचे आ रहे हैं उन सब के ऊपर ये नीला आकाश फैला हुआ है ना। तो जब हम बुलाते हैं, हम चाहते हैं कि हाँ वो हमारी हेल्प करे, आए, तब जा कर के वो हमारी हेल्प के लिए आते हैं। तो क्योंकि क्रिस्टाबेल ने नहीं उनको कॉल किया, न यकीन किया, है ना, और अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं बुलाया, तो फिर इसलिए वो नहीं है। एंड नाउ शी इज़ इन सच अ पोजिशन दैट शी फेल प्रे टू द हैंड्स ऑफ अ इविल स्पिरिटेड पर्सन नेम्ड जेरेल्डाइन, और वो शी जेरेल्डाइन कास्टेड अ स्पेल अपॉन Christabel. She casted her magic upon Christabel and taken control over her speech. ठीक है, तो this is it for this poem. In the next lecture, next video, we'll be covering a new poem. ठीक है, this is it for today. Thank you.